Good afternoon all. Okay, I start my lecture DLD. So for that I started share my screen. Okay. So we started our second unit, which is combinational logic design. I am audible to you all now. Anyone? Yes, ma'am. Okay, good. So second unit, DLD second unit, which is based on combinational logic design. So in that, these are the topic we will cover, which are code converter, BCD, access 3, gray code, binary code. After that, we will also study about the half adder, full adder, okay, binary adder, BCD adder. After that, also we will study about the multiplexer, cascading multiplexer, demultiplexer, then implementation of SOP and POS using MUX, comparator and parity generator and checker. So these all are topic related to second unit. Also this topic also used in a practical way. Okay, half adder and full adder also completed in theory. Okay, practical in practical. Okay, so again these are the related topic and which we will search in related books. So first, what is meant by combinational circuit? So combinational circuit, that means it is one of the digital circuit which output is totally depend on its present input. It is called the combinational circuit. Okay, it having number of inputs and number of outputs, and output will be depend on its present input. So in that there is a no memory. Okay, so no memory is required in combinational circuit. So definition is combinational circuit is digital circuit whose output at any instant in time depends only on the combination of inputs. Or we can say that output is depend on its present input. Okay.
So some characteristic of combinational circuit, that is it does not have memory. Okay, so combinational circuit do not use any memory because the previous state of input does not have any effect of the present state of circuit. Then combinational circuit can have n number of inputs and m number of outputs. Again, like a third characteristic, output of combinational circuit at any instant of time depends only on the level of present input at input terminal. And there are example of combinational circuits are encoder, decoder, multiplexer, demultiplexer, then code converter. These all are the combinational circuit. So summarize of the combinational circuit is, so what is combinational circuit? There are a number of inputs and number of outputs. Okay, so outputs are depends on only is present inputs. इतना आपको याद रखना है. And second thing क्या याद रखनी है? Example of combinational circuit. So multiplexer, demultiplexer, encoder, decoder, code converter, adder, half adder, full adder. These all are the example of combinational circuit. So how to design this combinational circuit? So there are the following steps to design the combinational circuits. So first one is from the specification of circuit. Determine the required number of inputs and output and assign a letter symbol to each. Okay, कुछ तो specification given होगा. From that we identify the number of inputs and a number of output. Okay, or after that we assign their symbols for input and their symbols for output. Symbol, that means the variable. A, B, C, D, these are the variable, and Y1 and Y2 are the outputs, like that. Second step is the derive the truth table that defines the relationship between inputs and output. From that input, required inputs and output, we derive the truth table. Okay. Then third step is obtain the Boolean function for each output function of the input variable. That means we can use the K-map for obtain the simplified Boolean expression. Okay. After that, draw the logic diagram and then verify the correctness of design using the truth table. Hope we will get about the definition of combinational circuit and how to design the combinational circuit. Anyone having doubt in definition of combinational circuit, its block diagram, its example, and designing on combinational circuit? Only 4 points are covered. So anyone having doubt? If you have doubt, please ask. Okay, next one is, so topic are BCD access 3 gray code binary code. We already started this binary code in practical. Okay, in shortly we again studied binary code is nothing but the combination of binary digital. What is the use of this binary code? Because the transmission purpose, storing purpose, because the computer only store the binary numbers. For that purpose binary code is required. Okay, so in decimal system binary represent is mostly used. Okay, for that we need to convert numerical, alphabet, special character, control function into the binary format. Okay, so there are the several classification: weighted, non-weighted, reflective, sequential, error detecting. Okay, so weighted code we already studied. What is meant by weighted code? Anyone? Anyone can please tell me what is meant by weighted code? No one? Okay. So what is meant by weighted code? So ये रिपीट करना है या नहीं करना है, ये भी बोलो, या डायरेक्टली मैं नेक्स्ट पार्ट पढ़ा दूं, जो बाइनरी कोड है वो नहीं पढ़ाना, ऐसे कुछ है? मैम रिपीट कर दो एक बार. ओके, सो ये लास्ट स्लाइड समझ में आई है? यस मैम. ओके, आज के एक लेक्चर में एक चेंज करना है मुझे. मैं कौन से भी 3 स्टूडेंट को है ना ये रखने वाली हूँ, मतलब आप म्यूट नहीं करना है, आपको अनम्यूट रखो, ताकि मैं इन बिटवीन है ना आपको कुछ क्वेश्चन पूछ सकती हूँ. ठीक है, रोज हम 3-3 स्टूडेंट ऐसे ही चेंज करेंगे. सो यहाँ पर मयूर ठाकुर,
आर यू देयर? मयूर ठाकुर, प्रियंका, मयूर ठाकुर, तेजस, गोपाल, नो वन? यस मैम। हुज आपका नाम? अभी मयूर ठाकुर। मैंने रिपीट करो फिर से। मयूर ठाकुर, ओके। आप मतलब ये म्यूट मत करो, सॉरी अनम्यूट मत करो। ओके नेक्स्ट। और कोई? किसने? प्रियंका ने हैंड रेज किया था। आरती सोनम ने। आरती, आर यू देयर? ओके, अनम्यूट नहीं करना है आपको। और एक स्टूडेंट चाहिए अब मुझे। मयूरी खैरनार, मयूरी खैरनार। यस मैम। ओके, मयूरी खैरनार हो नाम? यस। ओके, सो आप तीनों का भी माइक ऑन ही चाहिए मुझे, ठीक है? सो इन बिटवीन अभी ऐसे आप कंसिडर करो आप तीनों रिप्रेजेंटेटिव हो आपके क्लास के, ठीक है? जो भी समझ में आया रिपीट करना है आपसे मैं डिस्कस करूंगी, ठीक है? सो आपको डेफिनेशन समझ में आई है कॉम्बिनेशनल सर्किट की? बाकी लोग भी ये तीनों को छोड़ के अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं हर टाइम बोलती हूँ। आवाज क्यों आ रही है साइड में? अभी आप तीनों को गप्पे नहीं मारने हैं साइड में। सो कॉम्बिनेशनल सर्किट की डेफिनेशन समझ में आई आपको? यस मैम। So definition is output is totally depend on its present input. Okay. So these are the example. आपको इस दोनों स्लाइड में एक ही बात याद रखनी है कि कॉम्बिनेशनल सर्किट को नंबर ऑफ इनपुट्स होते हैं, नंबर ऑफ आउटपुट होते हैं और आउटपुट इज टोटली डिपेंड ऑन इट्स प्रेजेंट इनपुट ओनली। देन इसके एग्जाम्पल याद रखना है, ठीक है? और ये डिजाइनिंग के स्टेप्स, डिजाइनिंग के स्टेप्स क्या है? पहले कौन सा भी एक स्पेसिफिकेशन मिलेगा, दैट मतलब कौन से भी फॉर्म में स्पेसिफिकेशन मिलेगा, कोई इक्वेशन मिलेगा, कोई ट्रूथ टेबल मिलेगा। फ्रॉम दैट स्पेसिफिकेशन आपको नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट फाइंड आउट करने, ओके? एंड उसके बाद क्या करना, उसको कुछ सिंबल असाइन कर देने। अगर सिंबल ऑलरेडी गिवन है तो असाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। देन डिराइव ट्रूथ टेबल डिराइव करना है, देन इक्वेशन सिंप्लीफाई करने एंड लॉजिक डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है? सो हम एग्जांपल लेने ही वाले हैं डिजाइनिंग का, ठीक है? सो ये स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक्स लेने पड़ेंगे। सो बाइनरी कोड्स इज नथिंग बट दी combination of binary bits. Okay, so digital data is represented, stored and transmitted as a group of binary bits, also known as the binary code. So क्या जरूरत है इसकी? क्योंकि कंप्यूटर में हमेशा क्या होता है, जो भी स्टोरिंग है वो इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी होता है, इसलिए बाइनरी कोड की जरूरत है। और नंबर ऑफ डिफरेंट कोड है, सो हमें क्या जरूरत है? कोड कन्वर्टर की जरूरत है। So these are the types of binary code. These are the classification. There are 5 main classification: weighted, non-weighted, reflective, sequential and error detecting. ठीक है? So इसमें से first है weighted code. So what is mean by weighted code? Weighted code मतलब हर position को एक weight given होता है. For example 8421. Using this weighted code, we find the any number. ठीक है? So यहाँ पर अगर चेक करते हैं हम 8421 में हमने क्या किया है? यहाँ पर एक नंबर लिखा है 101, आपने इतने टेबल्स में लिखे बाइनरी कोड। सो 8421, इससे आपको अच्छी तरह पता है कि 8421 ये क्या है? पोजिशनल वेट है, वेटेड कोड है, ठीक है? सो देर आर अनदर एग्जांपल ऑफ वेटेड कोड लाइक 8421, 2421, 5211, these also called as the weighted code. होप वेटेड कोड में किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। नॉन वेटेड कोड में क्या होता है कि उसके पोजिशनल को कुछ भी वेट असाइन नहीं होता, ठीक है? सो ईच डिजिट पोजिशन विद इन द नंबर इज नॉट असाइन अ फिक्स वैल्यू. सो फॉर एग्जांपल एक्सेस 3 एंड ग्रे कोड आर नॉन वेटेड कोड. देन रिफ्लेक्टिव कोड, रिफ्लेक्टिव कोड मतलब क्या? वो सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग होती, ठीक है? ये जो भी प्रॉपर्टीज है, मैंने अभी वेटेड नॉन वेटेड, जब भी हम एक कोड लेंगे बाइनरी BCD एक तब आपको ये प्रॉपर्टी भी समझ में आएगी, ठीक है?
So what is meant by complementing? When code of 9 is the complementing of code 0 and 8 का जो भी कोड रहेगा वो किसका कॉम्प्लीमेंट रहेगा 1 का, 7 का, 2 का. तो हम एक्सेस 3 कोड में ये कॉम्प्लीमेंटिंग प्रॉपर्टी अच्छी तरह देखेंगे. ठीक है. सो ये ऐसे कौन कौन से कोड है जो रिफ्लेक्टिव कोड है? 2421, 5421, एक्सेस 3, these are the reflective code. Then sequential code. So बाइनरी जो भी कोड है वो सिक्वेंशियल कोड है. बीसीडी कोड ये सिक्वेंशियल कोड है. एक्सेस 3 ये सिक्वेंशियल है. सिक्वेंशियल मतलब क्या? वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में होता है. जैसे कि बाइनरी 00, देन 001, 002, 1 2 3 4 5 ऐसे सीक्वेंस में वो कोड रहता है. ठीक है. सो आप यहाँ पर डेफिनेशन में देख सकते हैं सिक्वेंशियल कोड इज सक्सेसिंग कोड वन बाइनरी नंबर इज ग्रेटर देन इट्स प्रीसीडिंग नंबर. ठीक है. 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4. सो it is the example of sequential code. So alphanumeric code मतलब क्या? Code used to represent the number, alphabet, character, symbol and various instruction necessary for conveying intelligence information. जैसे कि ASCII. अभी आपका जो भी कीबोर्ड है, कीबोर्ड में आप जब भी ए प्रेस करते हो तो वहां पर कंप्यूटर को कैसे समझ में आता है ए कोड? क्योंकि फिर ए का बाइनरी कोड कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. सो ये आस्की कोड आप ये भी बोलते हैं कि हमारा जो भी कीबोर्ड है वो आस्की फॉर्मेट में है. सो ये इसका भी यहाँ पर यूज होता है. ठीक है. देन एरर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग कोड. सो ऐसा कोड जिसमें एरर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग अलाउ है. ठीक है. सो ऐसा कौन से? हैमिंग कोड एंड देन एरर डिटेक्टिंग. ये सिर्फ आपको एज इंफॉर्मेशन के लिए कि ये पता होना चाहिए. ये दोनों भी अल्फा न्यूमेरिक आपको इतना स्टडी में नहीं है लेकिन पता होना चाहिए. अल्फा न्यूमेरिक एंड एरर डिटेक्टिंग. ओके. सो ये हमने प्रैक्टिकल के इसमें देखे थे. बाइनरी, ग्रे, बीसीडी एंड एक्सेस 3. सो आपको थ्योरी में भी ये चारों कोड के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है. सो लास्ट अभी जितने भी स्लाइड ली 2-3 उसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम है? आप तीनों, मयूरी और कौन है, किसी कुछ प्रॉब्लम है? No, ma'am. आरती नहीं है. ओके. शुभम प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं है. कंसीडर करूँ या आपको समझ में आए सर? Yes, ma'am. ओके. प्रॉब्लम अगर है आपको ऐसा लगता है तो उसी टाइम स्टॉप करो. सो बाइनरी कोड ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है. ठीक है. इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है. इस स्लाइड के ऊपर पता है सबको बाइनरी कोड कैसे, बाइनरी सिस्टम कैसे रिप्रेजेंट होती है? 2 सिंबल में, 0 एंड 1 में. सो 8 बिट्स मतलब 1 बाइट एंड ओके. देन 1024 बाइट्स मतलब 1 किलो बाइट्स. 1024 किलो बाइट्स मतलब 1 मेगा बाइट. 104 मेगा बाइट्स मतलब 1 गीगा बाइट. 1024 गीगा बाइट्स मतलब 1 टेराबाइट. ठीक है. सो ये अभी आप हर टाइम कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन अगर है हार्ड डिस्क से तो आप ये हमेशा ये वर्ड सुनते हो. ठीक है. बीट्स, बाइट्स, गीगाबाइट्स. तो ये याद रखो. सो नंबर कैसे लिखते? बाइनरी नंबर 8421 ये पोजीशन वेट. बाइनरी नंबर ये वेटेड कोड है. सो ये आपका वेट है. सो इस पोजीशन के लिए ये वेट है. ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन. इस पोजीशन के लिए ये वेट है. ठीक है. सो बाइनरी नंबर 5 है. सो 101. सो यहाँ पर ही हमें 5 मिलेगा इसलिए हमने ये कोड रिप्रेजेंट किया. देन हर नंबर के साइड में एक एलएसबी होता है. राइट साइड में एलएसबी ट्रीट होता है और लेफ्ट साइड में एमएसबी ट्रीट होता है. सो एलएसबी मतलब लोएस्ट वेट होता है और एमएसबी मतलब हाईएस्ट वेट होता है उस कोड के लिए. किसी को कुछ प्रॉब्लम है? 140 हो गया क्या? करिश्मा मैडम, करिश्मा मैडम बोलो. करिश्मा मैडम, करिश्मा मैडम. करिश्मा मैडम,
एक मिनट है। Okay, so gray code is nothing but the reflective code. Okay, और उसके प्रीवियस एंड नेक्स्ट कोड में क्या होता है, 1 बिट का डिफरेंस होता है, इसलिए इस कोड का यूज एरर हैंडलिंग, एरर चेकिंग के लिए यूज होता है। सो ग्रे कोड को अगर याद रखना है या इसकी रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी मतलब क्या, अगर आप ये 0 1 लेते हो तो ये रिफ्लेक्शन हुआ, मिरर इमेज जैसे थी, 1 1 यहाँ पर है, 0 0 यहाँ पर है। सो ये आपको अगर लास्ट पोजीशन में लिखते हो तो 2 बिट का नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। सिर्फ उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले जो भी उसके क्या करना है, रिवर्स नंबर करना है, 0 0 का 1 1 करना है। सेम अभी ये जो भी 4 नंबर है उसका क्या करना है, रिफ्लेक्टिव 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0। ओके, अब ये जो भी लाइन है ये साइड में लिखनी है और यहाँ पर फर्स्ट इसमें क्या लिखना है, 0 0 का 1 1 करना है। सो यू विल गेट बाइनरी कोड ऑफ 3 बिट्स। सो एप्लीकेशन क्या है, अगेन इसका यूज ये के मैप में होता है, देन डिजिटल कन्वर्टर में, एनालॉग डेटा कन्वर्टर में इसका यूज होगा, एंड सेकंड थिंग इज यूज फॉर द एरर चेकिंग। एंड इसका ड्रॉबैक क्या है, डिसएडवांटेज का है, इट इज नॉट गुड फॉर द अरिथमेटिक ऑपरेशन। सो ग्रे कोड को कैसे स्टेप्स मैंने ऑलरेडी पढ़े ही है। सो ये एक्सप्लेन करना है ग्रे कोड का स्टेप्स। ठीक है, स्टेप्स क्या है, रिकॉर्ड द एमएसबी बिट, देन एक्सऑर बिट टू द नेक्स्ट पोजीशन बिट, रिकॉर्ड करना रिजल्टेंट बिट में, देन रिकॉर्ड सक्सेसिव एक्सऑर बिट अंटिल द कंप्लीटेड एंड कन्वर्ट 0 1 1 बाइनरी टू ग्रे। सो कैसे आएगा 0 1 1, पहले ये जो भी एमएसबी बिट है वो एज इट इज लेनी है, देन 0 0 का एक्सऑर लेना है, 0 0 का एक्सऑर आता है 0, 0 1 का एक्सऑर आता है 1, 1 1 का एक्सऑर आता है 0। सो दिस इज रिजल्टेंट ग्रे कोड ऑफ दिस बाइनरी कोड। ठीक है, सो अगर मुझे कोई भी कोड कन्वर्टर करना है तो उसके लिए स्टेप्स क्या है, ट्रूथ टेबल, के मैप एंड लॉजिक डायग्राम। ठीक है, सो अब मैं ये स्टेप्स के यहाँ पर जाती हूँ। यहाँ पर मैंने एक एक्सप्लेन किया था आपको कि डिजाइन ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट। सो कोड कन्वर्टर इट इज द वन ऑफ द कॉम्बिनेशनल सर्किट। सो इसको कैसे डिजाइन करेंगे हम लोग। सो फर्स्ट स्टेप क्या है, फ्रॉम द स्पेसिफिकेशन ऑफ सर्किट डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट। सो यहाँ पर स्पेसिफिकेशन क्या है, कन्वर्ट द ग्रे कोड इनटू द बाइनरी कोड, ये हुआ हमारा स्पेसिफिकेशन। सो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर ग्रे कोड जो भी है, ग्रे कोड के लिए क्या ले लूंगी यहाँ पर, सो ग्रे कोड है। सो मुझे ये पता चला कि बाइनरी से मुझे ग्रे कोड कन्वर्ट करना है। सो मैं क्या करूंगी, इसमें वेरिएबल दे दूंगी, इनपुट बाइनरी नंबर है ना, आउटपुट ग्रे कोड है। सो बाइनरी नंबर के लिए क्या है, ये 4 वेरिएबल आएंगे, B0 B1 B2 B3 G0 G1 G2 G3, और फ्रॉम दैट स्पेसिफिकेशन वी ड्रॉ दिस ट्रूथ टेबल। सो बाइनरी नंबर आपको पता है 4 बिट्स के लिए, आपको ये भी स्टेप्स पता है कि बाइनरी टू ग्रे कैसे कन्वर्ट करता है। सो यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन वी डिराइव दिस टेबल। ठीक है, बाइनरी टू ग्रे। सो यहाँ तक जो पढ़ा, इससे किसी को कुछ प्रॉब्लम है, एनीवन? अगर आप बोलोगे तो मुझे समझ में आएगा कि प्रॉब्लम है, अदरवाइज मैं कंसीडर करूंगी कि एवरीथिंग इज ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है मयूर? किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, सो ये ट्रूथ टेबल आया। ठीक है, फ्रॉम दैट ट्रूथ टेबल वी डिराइव दी के मैप। सो के मैप के लिए किस किस के लिए के मैप आएगा, G0 के लिए के मैप आएगा। सो G0 के लिए के मैप के लिए क्या करना है, के मैप 4 बिट्स का आएगा, दिस आर द इनपुट B3 B2 B1 B0। सो 1 1 1, अगर आप देखते 0 1 1 के पोजीशन में 1 है,
ये 0 0 0 के पोजीशन में 0 है, 0 0 1 के पोजीशन में 1 है, 0 0 1 0 के पोजीशन में 1 है। या आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। 5 ये डेसिमल नंबर है, 5 डेसिमल नंबर के लिए क्या है 1, 8 डेसिमल नंबर के लिए क्या है 0, 12 डेसिमल नंबर के लिए क्या है 0, 15 डेसिमल नंबर के लिए क्या है 0। ऐसा भी कंसिडर कर सकते। सो अगर ये हम ट्रूथ टेबल देखकर के मैप में ये वैल्यू आ रही है, सो इसके 4 का मैपिंग आएगी, ठीक है। सो यहाँ पर क्या इक्वेशन आएगा, b1 b0 बार एंड b1 बार b0 बार। सो इसका XOR बनता है। सो यहाँ पर वो लिखा। देन अगेन ये 4 की मैपिंग आएगी। आपको क्या करना है, आप घर जाके ट्रूथ टेबल ड्रॉ करो और आप ये के मैप में वैल्यू पुट करो और इक्वेशन निकालो। क्योंकि मैंने ट्रूथ टेबल से के मैप में वैल्यू कैसे पुट कर रही है, के मैप के टाइम पढ़ा है, ठीक है। सो वो नॉलेज यूज करके आप क्या करो, के मैप ड्रॉ करो और इक्वेशन निकालो। देन इक्वेशन है G0 का इक्वेशन है B0 XOR 1। सो G0 का इक्वेशन है B0 XOR B1। G1 का इक्वेशन है B2 XOR B1। G2 का इक्वेशन है B3 XOR B2 एंड G3 एज इट इज है, G3 इज इक्वल टू B3। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 8 का ग्रुपिंग हो रहा है और इक्वेशन आ रहे हैं यहाँ पर B3, इसलिए G3 इज इक्वल टू B3। ओके, सो नेक्स्ट वन इज द बाइनरी कोडेड डेसिमल। सो बाइनरी कोडेड डेसिमल मतलब क्या कि यहाँ पर क्या करना है, हमें एक फिक्स वेट यूज करके हमें क्या करना है, कोड डिराइव करना है। सो BCD के लिए हमने यहाँ पर 8421 ये वेट यूज किया है। सो हर नंबर हम इसी वेट से रिप्रेजेंट करने वाले 8421 से, ठीक है। सो 0 to 9 जो भी वो रिप्रेजेंट करेंगे, सो 4 बिट बाइनरी कोड रहेगा। सो फॉर BCD के लिए ये रेस्ट्रिक्शन है कि हमारा जो भी कोड रहेगा वो 4 बिट का ही कोड होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद और वो भी नंबर 0 to 9 ही रिप्रेजेंट कर सकते 4 बिट में। ये पूरा रेस्ट्रिक्शन है BCD में। सो अगर मुझे 23 लिखना है, सो 23 का होल का बाइनरी कोड नहीं लिखना है, हमें क्या करना है, क्योंकि 23 इज द ग्रेटर देन 10, राइट। सो इसीलिए 2 का अलग लिखना है, 3 का अलग कोड लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अगेन 247, तो 2 का अलग, 4 का अलग, 7 का अलग, लेकिन हर एक क्या करना है 842 यही पोजिशन में यूज करना है। अगेन BCD कोड का अगर अलग पोजीशन वेट है तो इस वे से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज 4211 ये पोजीशन वेट है और मुझे रिप्रेजेंट करना है 7। सो इस केस में क्या आएगा 11, सो 6 हुआ एंड ये 1 7 हुआ, ओके। देन 9 है, 9 को अगर इसमें रिप्रेजेंट करना है तो 4 + 9, ओके। अगेन ट्रूथ टेबल, सपोज डेसिमल नंबर ये है 15, उसका बाइनरी नंबर ये है और BCD नंबर ये है। 0 के लिए बाइनरी नंबर सेम होगा, 0 to 9 तक BCD नंबर सेम आएंगे, लेकिन इसके बाद 9 के बाद अगर 10 आता है तो उसका BCD नंबर 2 वे में डिवाइड होगा। सो 1 का अलग लिखना, इस 1 का अलग लिखना, ये 0 के लिए अलग लिखना। 11 का बाइनरी नंबर ये है लेकिन BCD चेंज होगा, ठीक है। 15 का अगर चेक करते हो 001 दैट मीन्स 1 एंड ये 5, ओके, सेपरेट लिखना। सो क्या एडवांटेज है BCD के? सो मेन एडवांटेज ऑफ बाइनरी कोडेड डेसिमल इज टू अलाउ द इजी कन्वर्जन binary base form, okay. It has a many important application, especially using the digital display। and इसका डिसएडवांटेज ये है मेमोरी ज्यादा वेस्ट होती है। जैसे कि मुझे अगर 15 लिखना है तो 15 4 बिट में कवर हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ पर देखते तो 15 के लिए यहाँ पर 8 बिट वेस्ट हो रही, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पर वेस्टेज ऑफ मेमोरी होती है, ठीक है। नेक्स्ट कोड है access3 कोड। सो व्हाट इज मीन बाय access3 कोड? इज द नॉन वेटेड कोड, ओके। सो इसको XS3 ऐसे भी बोलते हैं access3 कोड को, ठीक है। सो access3 कोड कैसे निकालना है? तो जो भी डेसिमल नंबर रहेगा पहले डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना है BCD में एंड देन ऐड 3 करना है। सो वी विल गेट द access3 नंबर। नेक्स्ट access3 कोड इज द सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड, मीन्स द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द कोडेड नंबर इज द नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर इट सेल्फ। मैं ट्रूथ टेबल में ये प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करूंगी। अगेन ये सिक्वेंशियल कोड है access3 कोड, ओके। सो access3 कोड ने कैसे निकालना है? तो कन्वर्ट करना है हमें BCD में, कन्वर्ट करना है कौन सा भी नंबर, ठीक है। एंड देन इसमें क्या करना है ऐड 3।
सो BCD क्या है 2, सो 0 1 0, तो एक्सेस 3 कोड में कैसे करना है, फॉर कन्वर्टिंग 4-bit BCD कोड टू एक्सेस 3, सो आप क्या क्या करना है, ये जो भी है 0 0 0 1 0, ये आपका BCD कोड है, इसमें ऐड 3 करना है, सो वी विल गेट द एक्सेस 3 कोड दैट इज 0 1 0, सो 2 का एक्सेस 3 कोड क्या आया 5, ओके। सो अगर BCD टू एक्सेस 3 कोड कन्वर्टर अगर करना है तो क्या चाहिए, हम पहले ट्रूथ टेबल आएगा, ट्रूथ टेबल क्या आएगा, ये BCD नंबर आएंगे 0 to 9 और इसका एक्सेस 3 कोड, सो 0 में क्या ऐड करना होता है 3, सो 3, 1 में ऐड करना है 3 तो 4 बनेगा, 2 में 0 1, 2 में अगर 3 ऐड करते तो 5, और 9 में अगर ऐड करते तो क्या बनेंगे 12, ओके। सो अगेन K-map फॉर E0, K-map फॉर E1, K-map फॉर E2, K-map फॉर E3, ऐसे आपको ये डिजाइन करना है K-map। K-map की प्रैक्टिस आपको खुद से ही करनी पड़ेगी। देन फ्रॉम दैट इक्वेशन E3 का इक्वेशन ये है B3 प्लस B2 B1 B0, देन E0 इज इक्वल टू B0 बार, E1 का इक्वेशन, ऐसा इक्वेशन करके ये क्या है डायग्राम। अगेन ये कोड कन्वर्टर के जो भी स्टेप्स है ये मैं अगेन प्रैक्टिकल में भी लेने वाली हूँ, ठीक है। सो प्रैक्टिकल में लेने से पहले मतलब नेक्स्ट ट्यूसडे तक आपके नोटबुक में बाइनरी टू ग्रे एंड BCD टू एक्सेस 3 ये आपके नोटबुक में चाहिए। मैं रैंडमली किसी को भी नोटबुक वीडियो को दिखाने के लिए बोल दूंगी, ठीक है। सो नेक्स्ट है एडर। सो यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है, एनीवन? निकिता ठाकरे, तेजस्विनी पवार, मुझे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है। सो किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या कोड में? मैम बोलो। मैम ये लॉजिक डायग्राम एक्सप्लेन करो ना, एक्सेस 3 कन्वर्ट BCD टू एक्सेस 3। ये वाले, ये हो ना? हाँ हाँ मैम हाँ। K-map आएगा आपको, K-map आएगा तो ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये काम करना है आपको नोटबुक में, सबको क्या करना है, ये ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना है, K-map ड्रॉ करना है, डायग्राम भी ड्रॉ करने है। अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ कैसे करना है, लेकिन आपको खुद से भी एक बार ड्रॉ करना है, ठीक है। सो अब यहाँ पर देखो डी इक्वेशन यहाँ पर देखने आपको, ये क्या है इक्वेशन है, E0 का इक्वेशन क्या दिखाई देता है, आप बोलो। क्वेश्चन पूछा था आपने, E0 का B0 B0 ऊपर देखो बार, B0 बार। हाँ, बार मतलब हम नॉट गेट यूज करते हैं, राइट। सो E0 यहाँ पर E0 है, वो थोड़ा सा इमेज की वजह से यहाँ पर क्या है E0। सो E0 का इक्वेशन क्या बताया मैंने, D0 बार ना, राइट। सो D0 Yes, ma'am. बार, सो ये D0 है, यहाँ पर नॉट लगा है मतलब D0 बार। सो ये कंप्लीट हुआ आपका E0 का, ओके। ये इनपुट्स है और ये साइड में आपका Yes. आउटपुट है, D0 D1 D2, these are the inputs and these all are the outputs, और इन बिटवीन ये क्या है सर्किट। सो ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है, मतलब देखो इनपुट है और ये आउटपुट है, आप जो भी इनपुट देंगे उसी हिसाब से आपका आउटपुट आएगा। सो मैंने E0 का एक्सप्लेन किया। देन E0 के बाद मैम E1 एग्जाम में आने वाली क्या है डायग्राम? प्रैक्टिकल में तो है, एग्जाम में भी आ सकता है। हेलो हेलो, Yes, मेरी ma'am. आवाज, हाँ ओके। सो एग्जाम का अभी तो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन आपको मतलब याद रखने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप प्रैक्टिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, राइट। और इसमें मतलब डिफिकल्ट नहीं है कुछ। सो अब यहाँ पर सिर्फ कॉन्सेप्ट E1 का क्या इक्वेशन है, और ये अब मुझे रिमेम्बर भी नहीं करना है आपको। रिमेम्बर क्या करना है कि BCD टू एक्सेस 3 कोड कैसे लिखते हैं, ट्रूथ टेबल रिमेम्बर करना है। रिमेम्बर भी नहीं होगा वो, एक्चुअली अगर एक बार समझ में आया तो आप ड्रॉ कर सकते हो। सो E1 का इक्वेशन क्या दिखाई दे रहा है आपको? B1 into B0 हाँ बस plus यहाँ तक ही B1 बोलो, बार। एक मिनट यहाँ तक ही बोलो, B1 B0, राइट। Yes, ma'am. हाँ एक मिनट, B1 B0 E1 का।
ओके, अब ये जो भी इक्वेशन है B1 B0 और प्लस B1, सो ये एक्स नॉर का सिंबल आता है। क्या आता है ये इक्वेशन कंबाइन? एक्स नॉर B1 B0। आपको रूल पता है थोड़े बहुत बुलियंस लॉ ना? यस मैम, पता है। हाँ, तो ये एक्स नॉर आएगा, इतना पता है ना आपको? अगर यहाँ पर B1 के ऊपर बार होता, B0 के ऊपर नहीं होता, और यहाँ पर अपोजिट होता तो हम एक्स और लिखते, राइट? लेकिन यहाँ पर दोनों के ऊपर बार नहीं, यहाँ पर दोनों के ऊपर बार है, तो ये क्या बनता है? एक्स नॉर, एक्स नॉर। राइट। सो यहाँ पर कौन सा गेट लगाया हमने? एक्स नॉर। अगर हमारे पास सर्किट में एक्स नॉर गेट नहीं है, आईसी नहीं है, तो हम क्या करते हैं? एक्स नॉर लगा के उसको नॉट गेट अगर लगाते तो भी हमारा क्या बनता है? एक्स नॉर। ठीक है, सो ये यहाँ तक समझ में आया? ये दो आउटपुट्स मैंने बताया आपको। यस मैम। ओके, सो ये दोनों भी समझ में आया होगा आपको। सो नेक्स्ट है E1 हुआ, अब E2 का इक्वेशन बोलो। B2 B2 बार B1 प्लस आप B0। अब दिख दिखाई, नहीं रहा। एक सेकंड, अब दिखाई दे रहा है या नहीं? हाँ, ऊपर, हाँ। हाँ साइड, B2 बार हाँ इन B1 ब्रैकेट B1 B1 B0। प्लस B0। ओके, यहाँ तक ही है। हाँ, सो यहाँ देखो अभी आप, B2 है यहाँ पर, सिर्फ वेरिएबल D इतना ही है। सो B2 बार नहीं, B2। एक सेकंड है, B2 एक्स और B1 एंड B2 एक सेकंड है, क्या अटैच किया है वो देखना है एक बार। E2 का, ओके D1 एक्स और, ओके पहले ये कन्वर्ट किया है B1 एंड B0। ये कर्सर दिखाई दे रहा है मेरा? यस हमको मैम। क्या करना है ये तो मैं बताऊंगी, आप लगे तो, अगर ऐसी नहीं तो प्रैक्टिस आपके गेट के साथ, आपको इक्वेशन कोई भी लेकर है ना, गेट के साथ है ना डायग्राम ड्रॉ करने की प्रैक्टिस आपकी चाहिए। ठीक है, अगर प्लस है तो और गेट यूज करते, इनटू है तो एंड गेट यूज करते, इतना। ठीक है, सो ये अगर इक्वेशन है, तो यहाँ पर क्या किया? D1 D0 पहले ये यहाँ पर लिया है, अगर मैं सीक्वेंस वाइज अगर जा रही हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या है? D2, सो B2 को यहाँ पर अटैच किया, मतलब ही D2 ये। एक मिनट है, ठीक है। B1 B0 ये हमने स्टार्ट किया था ना। सो हाँ B1, मैम। ये देखो D, सिर्फ ये क्या है, मैं लगे तो ये डायग्राम ही चेंज करती हूँ। B1 और D0 की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है ना। D0 प्लस D1 ये दिखाई दिया आपको गेट? ये जो भी आपने जितना यस मैम। इक्वेशन E2 का, वो पूरा क्या है यहाँ पर E2 को कनेक्ट किया है। ठीक है, सो ये हुआ D1 D0। ठीक है, अब D1 D0 को कहाँ अटैच किया है? B2 बार को। सो B2 बार कहाँ है?